Good morning, student. Today I am going to explain you the first chapter of English language, the sentence. What is sentence? While talking or writing, we use words. These words are generally used in groups. A group of words may or may not make sense. Means while we talk, while we write, we use words. Means जब हम बात करते हैं, जब हम कुछ writing करते हैं, तो क्या है उसमें words का use करते हैं. और वो वर्ड सिंगल वर्ड नहीं होते, वो ग्रुप में होते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. और वो वर्ड्स, दोज वर्ड्स, वो मेक कंप्लीट सेंस, यानी कि जिनके थ्रू हम अपनी बात को किसी दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं और उसका एक सेंस निकलता है, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग निकले, वो वर्ड सेंटेंस होते हैं. दोज वर्ड्स और सेंटेंस. और वो वर्ड जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती है, जो जिनका सेंस नहीं होता है, तो वो वर्ड सेंटेंस नहीं होते हैं. ब्लैक लाइक एग्जाम्पल आर गिवन. Blackboard, the same class in can be vary. Here you can't understand what the sentence, what the words are telling us. Again the example as given, the blackboard can be seen in every class. यहाँ पे क्या वर्ड्स की मीनिंग समझ में आ रही है कि the blackboard can be seen in every class. So those words who express meaning are known as sentence. So here the exercise has given and you have to arrange the word like rules of our country, the laws, every should and regulation citizen obey. यहाँ पे word arrange नहीं है, आपको arrange करना है like every citizen should obey the rules and regulations of our country. So then it makes a meaningful sentence. Now kind of sentence. What sentence according to, depending upon what and how we want to express our thoughts and feeling, sentence can be divided into four kind. Means while we talk, what we want to express, so thought or feeling, through this we divided sentence into four types: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. Assertive sentence, a sentence that state or asserts, declares something, is called a declarative or assertive sentence. मीन कोई भी sentence हमने डायरेक्टली बोल दिया, कि कुछ भी बताया, जैसे कि he is going, he is talking, तो क्या है, डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, तो that sentence is known as assertive sentence. Like example, the children made sand castles on the beach. He ate breakfast from his tiffin box. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि he ate breakfast from his tiffin box. And a declarative sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. इसके assertive sentence की क्या है कि ये स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से और इनके एंड में फुल स्टॉप का यूज़ होता है. देर आर टू काइंड ऑफ असर्टिव सेंटेंस. अब असर्टिव सेंटेंस के भी टू टाइप है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव. अफर्मेटिव में क्या होता है, जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ इम्पोलाइट, तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है कि नो, नॉट. निगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, नो, नॉट, ये होते हैं निगेटिव वर्ड्स. यहाँ जहाँ पर नो निगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है, तो वो वर्ड्स होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. वो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एन ऑर्डिनरी सेंटेंस can be changed into negative sentence by using the word not after the subject. अब जो हमने एग्जाम्पल देखा अफर्मेटिव सेंटेंस का, वी कैन चेंज इट इनटू निगेटिव सेंटेंस. मीन्स हम इसको निगेटिव में चेंज कर सकते हैं, क्या करके, राधा इज़ के बाद हम इसमें नॉट लगा देंगे. राधा इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल. पहले हमने क्या कहा, राधा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. नाउ वी आर सेइंग दैट राधा इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल. सो दिस सेंटेंस इज निगेटिव सेंटेंस. Sometimes while transforming an affirmative sentence into a negative sentence, an antonym can be used along with the negative word so that the meaning remains the same. Means sometimes we use when we change sentence into negative sentence, we use antonym word. Antonym word क्या होता है, opposite word. तो जब हम opposite word यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे no not का यूज़ नहीं करते हैं. Interrogative sentence, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. मीन्स जब हम किसी सेंटेंस में क्वेश्चन को आस्क करते हैं, दैट सेंटेंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लाइक व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ सेल्फिश. तो हियर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सेल्फिश का अपोजिट क्या है, and how can we recognize that these sentences interrogative. So we can identify that from question mark.
जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा वो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Interrogative sentence is always followed by a question mark, like are you going to the market, what are you doing, are you doing your homework, or fiddling with your pen. These are the example of interrogative sentence. And we can change assertive sentence to interrogative sentence, like she has prepared delicious dinner, hasn't she, you haven't done your homework, have you. Formation of question tags. The question tags consist of only 2 words. Question tags क्या होता है? Sometimes we come across sentence which have 2 parts, a statement and a short question. This short question has been tagged onto the statement, hence it is called a question tag. मीन्स जब हम कोई बात करते हैं, कोई सेंटेंस ऐसा हमने बोला और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि शी हैज़ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस डिनर, तो ये क्या हुआ, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अब हमने उसमें बोला हैज़ नॉट शी, मीन्स क्या हुआ कि उसने डिलीशियस डिनर को प्रिपेयर किया, क्या नहीं किया. तो ये क्या हो गया, ये जो इसका छोटा सा पार्ट है ये होता है क्वेश्चन टैग. और ये क्या होता है, मोस्टली 2 वर्ड्स का, 2 या 3 वर्ड्स का होता है. नाउ इम्परेटिव सेंटेंस. Imperative sentence, a sentence that expresses a command, order, advice, suggestion, or make a request or entreaty is called an imperative sentence. Means when we express a command, when we command to someone that go from here, या फिर जब हम किसी से ऑर्डर देते हैं कि प्लीज़, या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, या किसी को एडवाइस करते हैं कि डोंट डू दिस, या सजेशन दिया हमने, या किसी को रिक्वेस्ट किया कि इंट्रीटी यानी कि गॉड से प्रेयर की, फॉर गिव मी ओ गॉड, गॉड से प्रेयर किया. तो ये जो सारे फीलिंग होती है, जो ये सारे थॉट्स होते हैं, ये होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग इज कॉल्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जब हम वाइल वी टॉक, जब हम कोई बात करते हैं और जब हमने कोई ऐसी चीज़ देख ली कि फीलिंग अचानक से हमारे एक्सप्रेस हो जाती है, जैसे लाइक वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, या फिर हमने कहा किसी कोई अगली चीज़ देख ली, वेरी वेरी अगली, तो ये क्या हुआ, तो ये हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है. तो दैट इज़ नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से. ये मार्क्स होता है जो एक लाइन खींच के एक डॉट होता है, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. And here the exercise has given, and you have to identify that which kind of sentence has been given here, like and you have to identify this from question mark or from exclamation mark, and you have to arrange the sentence with correct punctuation mark. मीन जहाँ पर आपको punctuation mark नहीं दिया है, जहाँ पे full stop question mark नहीं दिया है, वहाँ पर आपको sentence को पढ़ के उसमें marks को put on करना है. and क्या करना है आपको, जैसे आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया है उसको आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में. एक्सक्लेमेशन सेंटेंस दिया है, हाउ कूल द वेदर इज़ इन दार्जिलिंग, इंट्रोगेटिव. तो अब हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे, हाउ वॉज द वेदर इन दार्जिलिंग. That exercise has given, and try to solve it. And in the next part of the video I will explain you about subject and predicate and another form of sentence. Thank you.